معیشت کی بحالی کے لیے اسحاق ڈار کو لایا جا رہا ہے اور عید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. حکومت چاہ رہی ہے کہ ان سے آپ کے معیشت کو بہتر بنایا جائے. آپ کہتے ہیں اسحاق ڈار کے آنے سے صورتحال بہتر ہو جائے. پیچھے ہو جاؤ. دیکھیے میرے ساتھ اس حوالے سے نہ کوئی حادثہ ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ملک کی معیشت کی بہتری کا جذبہ ہی کار فرما ہوگا اور حکومت یہ چاہے گی کہ اگر پہلے بھی ان کی مہارت سے ملک نے فائدہ اٹھایا تھا اور اسحاق ڈار کے تجربے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی تو پھر پاکستان کے ایک ایسے شہری کو اور پاکستان کے ایک ایسے بیٹے کو کیوں نہ پاکستان لا کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. اب ظاہر ہے کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو ہمارا گزشتہ 3-4 سالوں کا ریکارڈ ہے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. یعنی آپ دیکھیں جیسے ہمارا جیسے ایجنڈا تھا اس حکومت کا کس طریقے سے ہم ملک کی معیشت کو تباہ کریں, یعنی پاکستان کے خاتمے کا ایجنڈا تھا. اس وقت پوری دنیا میں اگر ریاست کی بقا کا سب سے بڑا سبب ہے تو وہ اقتصادی استحکام ہے. دفاعی قوت دوسرے درجے کی چیز بن گئی ہے. پہلی چیز ملک کی معیشت ہے. اگر ملک کی معیشت کے اعتبار سے آپ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. اب اس حوالے سے آپ خود سوچیں کہ غیر مسلم دنیا میں چائنا ہمارا سب سے قریب ترین دوست ہے. وہ ہم سے ناراض ہو گیا. اس نے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ آپ نے سپیک کو روک دیا اور یہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور اس انویسٹمنٹ کے لیے 1995 سے کام شروع ہوا تھا. ابتدا وہاں سے ہوئی تھی اور ایک مسلسل لمبا سفر کر کے پھر 2015 میں 14 میں نیو سائن ہوا اور پھر کام شروع ہو گیا. پھر اسی طریقے سے صرف یہ نہیں کہ آپ نے عمران کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جب معاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانفیڈینشلز بھی ہوتی ہیں. تو اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے, وہ انہوں نے IMF کو فراہم کیے. اب یہ کس قدر بددیانتی ہے اور اپنے حلف سے انحراف ہے جو وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے کہ میں ریاستی راز کو برقرار رکھوں گا, اس کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. پھر اس سے بڑھ کر امریکی غلامی اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے لیے اس کو اپنا حلف بھی ایک روایتی چیز نظر آیا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو حق کی حیثیت ہے اس کا کوئی پاس ان کو نہیں رہا. اور اسی طریقے سے پھر ہمارے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا جس کو اسٹیٹ بینک کی آزادی کا نام دیا. اور آج وہ اسٹیٹ بینک نہ آپ کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے, نہ آپ کی کابینہ کو جواب دہ ہے, نہ آپ کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. اور پھر آپ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کیوں نیچے جا رہا, اوپر کی طرف کیوں جا رہا ہے, روپیہ کیوں اس کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. یہ معاملہ شاید اب حکومت کے اختیار سے ہی باہر ہو چکا ہے اور یہ تو قومی قوم کو عمران خان ہی نے دیا تھا.
सारी सियासत उसने सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर जितने मुकदमात बनाए उन्होंने एक केस भी किसी सियासतदान के खिलाफ वो साबित नहीं कर सके। मतलब सिर्फ सियासतदानों को जलील और रुस्वा करना और उनको अदालतों में घसीटना, नेब में उनको घसीटना। और मैं कम से कम खुद जाती तौर पर इस बात का मुझे मुशाहिदा है कि किस तरह कौन कौन सा इदारा जिसने अपने तमाम काम छोड़ के मेरी कोई जायदाद और कोई प्लाट तलाश करने में 4 साल गुजारे और इस तरह बेहुदा किस्म की सूरत हाल में उन्होंने मुल्क इदारों को भी ज़ाया किया, पैसे को भी ज़ाया किया और ख़ुद उसकी ये हालत कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसके तहत पाकिस्तान रैंकिंग में, करप्शन की रैंकिंग में 116 से 124 तक पहुंच गया। तो उसकी अपनी कारकर्दगी तो ये है कि खुद बैनुल-अक़वामी ट्रांसपेरेंसी ने इनके हुकूमत में 3 से 4% तक करप्शन की इजाफे की बात हुई कि उससे भी ज़्यादा की। और जब उन्होंने खुद अपने सूबे जहाँ पर उनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ जो उन्होंने एक एहतसाब कमीशन बनाया था और जिसकी जद में खुद उनका वज़ीर आला आया, उनके वज़रा आए, तो पूरा एहतसाब कमीशन ही खत्म कर दिया उन्होंने, वजूद ही खत्म कर दिया उसका। तो आप खुद अंदाजा लगाएं जी कि किस तरीके से उन्होंने मुल्की, अब कहते हैं कि मुझसे गलती है, गलती है क्या, आपने अहलियत ही नहीं है, गलती की बात नहीं है, अहलियत ही नहीं है। यानी 4 से 5 तक आपने वज़राए खजाना तब्दील किए, कोई 5 FBR के चेयरमैन आपने तब्दील किए और ये भी आपको मालूम हो कि जो आखिरी और सबसे बड़ा माहिर शौकत तरीन साहब, जो जिस हर जमाने में हमने उनको वज़ीर खजाना होते देखा है, मेरा है उनको मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर खजाना बनते देखे आए हैं, वो इस हद तक आगे जाता है कि उसका ऑडियो वायरल हुआ है, टेलीफोन कॉल जो उसकी वायरल हुई है, आपने खुद सुना होगा कि किस तरह वो अपने दोस्त से कह रहा है कि फौरी तौर पर लेटर लिखवाए को ताकि हम खुद मुआहदा ना कर सकें। यानी इसका माना यह है कि मुल्क के इतने जिम्मेदार मनसब पर फायज होने वाला शख्स इस हद तक तासुब में डूबा हुआ कि वो चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और फिर इस पर मुल्क में वो सियासत करे। तो अपनी जो उनकी कमजोरियां थी या ये कि उनका एजेंडा यही था और चूंकि उनकी हुकूमत को हमने गिरा दिया तो एजेंडा नामुकम्मल रह गया। अब वो इस एजेंडे की तकमील इस तरह भी करना चाहते थे कि हुकूमत से बाहर आकर अब कौन सी चीज आज आप देख रहे हैं 3-4 महीनों से जिस तरीके से वो गली गली घूम रहा है पागलों की तरह और रोज तक कोई ना कोई बात बांटता है। अब आप बताएं कौन सी चीज रह गई? वो लेटर किधर गया जो लहराता था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई? आज उसी को कह रहा है कि इसके द्वारा तहकीकात हो जाए तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। बड़ी गैरत के साथ उसने असेंबली छोड़ी, कागज लहराकर कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई है, बाहर की साजिश हुई है, फलां है। तो बाहर की साजिश किधर गई? और अदालत ने कहा कि कोई साजिश की बात नहीं, अमेरिका ने कहा, उनके इदारों ने कहा कोई साजिश की बात उस पर नहीं है और उसको खुद वो खत छोड़ना पड़ा। फिर कहा मुझे कत्ल करने की मेरे खिलाफ साजिश हो रही। किसने कत्ल करने की साजिश की भाई? शायद कल फिर कहा है कि वो XYZ कौन? आप बैनुल-अक़वामी चोर साबित हुए हैं। आपकी इसराइल से, यहूदियों से, इंडियन से, अमेरिकन से माली जो मदद आई है वो साबित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और उनके जजेस के बयानात के मुताबिक आप स्टेट दुश्मन साबित हुए हैं। आपकी जो बातें हैं वो रियासत दुश्मनी पर मबनी करार दी गई हैं। फिर ऐसे आदमी को दोबारा हुकूमत मिले?
اگر اب مجھے حکومت ملی تو میں غلطیاں نہیں دہراؤں گا. بابا آپ نے غلطیاں نہیں کی, صرف آپ نااہل ثابت ہوئے. اور اب جب آپ نے اقتدار سے باہر آ کر ہر ہفتے کے بعد ایک نیا موقف لیا, آپ کسی ایک موقف پہ نہیں ٹھہر سکتے. تم نے روز ایک نیا بیانیہ دیا اور نئے بیانیے پہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کی, اور ہر بات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس طریقے سے سیاست نہیں ہوا کرتی جس طریقے سے وہ ملک میں کر رہا ہے. اور جس طرح ملک کی معیشت کو انہوں نے اپنی حکومت میں تباہ کیا, آج حکومت سے باہر آنے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ ملک کی تباہی کا ایجنڈا کیوں نامکمل رہا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اور انشاءاللہ تاریخ یہی کچھ لکھے گی اس کے بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کوئی بات کر رہے ہیں, ہم بھی انہی غلام گردشوں میں زندگی گزر گئی ہے اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. مطلب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے آڈیو اور ویڈیو لیکس ہونا شروع ہو رہی ہیں. کل سے اب تک جو ہے 3 سے 4 آڈیو جو ہے وہ لیکس ہو چکی ہیں, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, مریم نواز اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی آڈیوز بھی جو ہے شامل ہے. تو نیشنل سیکورٹی کا خطرہ تو ہوگا نا پھر وزیر اعظم کی سیکورٹی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے انتہائی تشویشناک ہے اور اس پر سختی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا. یعنی آپ بتائیں کہ پاناما جو کوئی کیس نہیں تھا لیکن بنایا گیا, پاناما سوال کاما نتیجہ, پوری حکومت گرا جس کے اوپر. ڈان لیکس کی بات کتنا بڑا ایشو بنا گیا, وزیر اعظم ہاؤس سے ایک جملہ باہر کیسے کیا ہے, اور آج وہاں کی آڈیوز کال سامنے آ رہی ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. تو میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ. کس نے یہ ہیک کیا ہے ہمارے وہاں کے گفتگو کو, تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے. اچھا مولانا صاحب, یہ جو جیل میں پانی کھڑا ہے, کافی فٹ پانی کھڑا ہے, جس کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے اور کئی بچے بھی ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ زرداری صاحب نے ہر وقت پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے میں لگا دیا, لیکن ابھی تک وہاں کچھ ایسا ان کے لیے کیا نہیں گیا. ان کے خزانے سے, سندھ کے خزانے سے جو ہے وہ اسلام متاثرین کی رقم جو ہے وہ بھی ہیک ہونا شروع ہو گئی ہے. میں شاید آپ کی باتوں سے اختلاف نہ کر سکوں, لیکن میں اس وقت جب کہ ملک سیلاب کی تباہ کاریوں سے دو چار ہے, لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں تک لوگوں متاثرین کی تعداد پہنچ گئی ہے, اور چاروں صوبے اس سے متاثر ہوئے ہیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب کے جنوبی اضلاع, اسی طریقے سے اس وقت سندھ میں پانی کھڑا ہے اور واٹر لاک ہو گیا ہے. یعنی وہاں پر اب زمینیں سب تقریباً سیم زدہ ہو گئی ہیں, اور اگر یہ خشک بھی ہو جائیں تو تھور آ جائے گا, تو وہ بھی پھر بھی قابل کاشت نہیں رہیں گی. تو اس وقت میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی حد تک تو بہرحال 70 ارب روپے کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم اس کی بحالی کے لیے اس کو مختص کرتے ہیں, اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر مزید آگے ضرورت پڑتی ہے. اور یہ کوئی 20 یا 25 ارب سے اس کو بڑھا کر 70 ارب کیا گیا جب تباہ کاریوں کی اضافہ ہوا. لیکن کسی جگہ پر بھی صوبائی حکومتوں کی کوئی کارکردگی زیادہ مؤثر سامنے نہیں آئی. اور یہی شکایت جب میں ابھی سندھ گیا تھا تو وہاں بھی مجھے دکھائی دی. سیاسی جماعتوں, ملک کی جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں, این جی اوز ہیں, وہ بھی زیادہ تر مذہبی طبقے بہت زیادہ کام وہ کر رہے ہیں. میں کسی اگر 1% بھی کسی نے حصہ ڈالا ہے تو میں اس کو بھی قدر کے لحاظ سے دیکھتا ہوں اور اس کی تحسین بھی کرتا ہوں. اس وقت پبلک کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اس پر کوئی سیاست کرنے کی یا سیاسی مفادات کے لیے سرکاری خزانے کو استعمال کرنا, یہ شاید تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. تو پاکستانی معیشت پر ایک بہت بڑا ضرب لگا ہے اس
یہ کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کس کو آپ اطلاع دے سکتے ہیں؟ اللہ کا نظام ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہے اور ہماری جو قومی سطح کے جرائم ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ ان جرائم کا حصہ ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. تو حکومتوں کی بہرحال ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتیں اپنا بھرپور اور پھر انسانیت کی بنا پر، یہ نہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں جو انہوں نے کام کیا نہیں دیکھا اس بات کو کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ شیعہ ہے یا سنی، وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ جو بھی ہے بطور انسان. میں خود 2-3 جگہوں پہ گیا، میں نے خود تفصیل کیا، سب ہندو برادری عیسائی بھی موجود تھے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور انسانی بنیاد پر یہ خدمت کی گئی ہے. اور انشاءاللہ جب تک صورتحال ایسی ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جو وسائل ہمارے پاس ہیں یا ہم اکٹھا کرتے ہیں یا اس کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں، انشاءاللہ وہ غریب تک پہنچے گی، بچوں تک پہنچے گی. اور اب بیماری یقیناً ہمیں اس حوالے سے بین الاقوامی دنیا کو بھی متوجہ کرنا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی ہم متوجہ کرنا ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہاں پر ٹیمیں آنے چاہیے. پانی سے کون سے امراض اٹھ رہے ہیں تاکہ اس کا فوری طور پر تدارک ہو سکے اور انسانیت کو یہاں پر پاکستان کے تحفظ دینے کے لیے اقدامات کریں. مولانا ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں گونج ہے اور مذہبی طبقہ بالخصوص جو ہے ایون کہ خود جو ٹرانسجینڈر ہے وہ بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن اس بل کو اس حکومت نے اسے منظور کیا گیا، اگرچہ ماضی کی تینوں حکومت اس کے اندر کسی حد تک ان کا حصہ ہے. تو آپ اس بل کی واپسی کے لیے پارلیمنٹ میں کیا اقدامات کریں گے؟ میں آپ کو یہ بات آج بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جو 2018 کا ایکٹ ہے اس کو پوری طرح اول تا آخر ایک جامع تربیتی بل ہم نے تیار کر دیا ہے، اور علماء کرام اور اعلیٰ ترین علمی شخصیات کے مشورے کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے. ہمارے بھی سپریم کورٹ لیول کے جو لائرز ہیں انہوں نے اس کو مسودہ تیار کیا ہے، اور ایک آدھ دن کے اندر وہ باقاعدہ باضابطہ طور پر سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب ٹرانسجینڈر کے لفظ کی تعریف تبدیل کی جائے، یہ ایک نمائش تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے مفہوم تبدیل نہیں ہو سکتا. جی ٹرانسجینڈر کبھی بھی کسی بھی انگریزی لغت میں خواجہ سرا کو نہیں کہا جاتا. یہ لفظ کبھی بھی کسی خنثی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے انٹرسیکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر جنس کی تبدیلی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا اور کوئی دوسرا مفہوم ہے ہی نہیں. تو ایک بات واضح رہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو طبی لحاظ سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جس پر ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا جائے کہ کیا واقعی ایک ایسا انسان پیدا ہوا کہ جس کی مردانگی ہو یا نسوانیت ہو وہ ماں کے پیٹ میں مکمل نہیں ہوئی اور بعد از ولادت اس کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کا اس کو احساس ہو رہا ہے. تو اس پر تو ڈاکٹرز ہی کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں اس کو ہیلپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن میں ایک قرآن و سنت کے طالب علم کی حیثیت سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرد پیدا کرنا یا کسی کو عورت پیدا کرنا یہ تکوینی عمل ہے، اور اللہ کے تکوینی امور پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. کسی بندے کو، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے کیوں مرد پیدا کیا یا مجھے کیوں عورت پیدا کیا. تم ہوتے کون ہو؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ دنیا ساری کائنات اس سے پیدا کی ہے. کل آپ کہیں گے آسمان کیوں پیدا کیا، ستارے کیوں پیدا کیے. کل آپ کہیں گے اس گھر میں میرے جو گدھا کھڑا ہے گدھا کیوں پیدا کیا، یہاں اونٹ ہونا چاہیے یا اس کو اونٹ کہنا چاہیے. اس قسم کی چیزیں جس کا تعلق تکوین سے ہے اور اللہ کی امور تکوینیہ سے اس کا تعلق ہے، اس پر کسی قسم کا سوال اٹھانا یہ اللہ کے ساتھ ایک جنگ کرنے اور اس کو بغاوت کرنے کے مترادف ہے. تو اب ظاہر ہے جی کہ ایک چیز جو ہائی لائٹ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں، بدقسمتی یہ ہے کہ جب اس میں این جی اوز کام کرتی ہیں تو وہ جب ایک کام اس نے 20 سال بعد کرنا ہے تو آج سے اس نے اس کے لیے زمین بنانی ہے.
तो इतने मासूमाना अल्फाज के साथ और मासूमाना किस्म के जुमलों के साथ आपके सामने आते हैं और लॉबिंग करते हैं कि बाज़ दफ़ा वो उलमा से भी फतवा लेते हैं इंतजामी और एक बुनियाद बनाकर भी उसके ऊपर इमारतें खड़ी करते हैं और फिर वो जहाँ तक पहुँचते हैं कुछ पता नहीं होता, खुद उन हजरात को भी पता नहीं होता कि जिन्होंने इब्तिदाई मरहले में उनकी खूबसूरत बातों में आकर उसको तायद कर दी। तो ये चीज़ें मुझ पे चलती हैं। और पार्लियामेंट में भी जो कुछ खवातीन होती हैं जो एक नजरिए की होती हैं और उसका ताल्लुक पीछे से किसी एक एनजीओ के साथ होता है और वो हर पार्टी में उसकी रुकनीत होती है, लेकिन उस कमीशन सबका एक होता है, वो अपनी पार्टी में लॉबिंग करती है और फिर उसके लिए भी हिकमत अमली बनाती है कि जिस दिन कोरम पूरा ना हो, छुट्टी का दिन आने वाला हो, अक्सर मेंबरान जा चुके हों, मजहबी लोग वहाँ मौजूद ना हों, तो कोशिश ये होती है कि उस माहौल में उसको निकाल लें और चुपके से खामोशी के साथ इस किस्म की चीजें आ जाएं। ये हमारे बदकिस्मत ये है, हालांकि आवाम का नुमाइंदा इदारा होता है, उसमें जो चीज हो खुलकर लाई जाए। और मुझे इल्म है कि बाज़ चीजें मेरी मौजूदगी में जिस तरीके से यहाँ असम्बली में लॉन्च करने की कोशिश की गई और जिस तरह हमें चपटी किस्म की बातों से उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हम डट गए उनके सामने और हमें वापस कराए हैं। और फिर पता चला है कौन सा एनजीओ उसके पीछे था, एनजीओ के कौन सी खवातीन उसके पीछे थी। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में गुजरी हैं, हमारे ऊपर हमारे मुशाहिदात हैं। इस हवाले से मैं आप खुद बताएं कि 1988 से मैं असेंबली में हूँ और मुख्तलिफ अवकात पे इस किस्म की चीजें सामने आती रही हैं, तो इसका एक तजर्बा है हमें कि किस तरीके से वारदात की जाती है। तो ये एक वारदाती किस्म का एक्ट था जो उस वक्त पास किया गया था और आज वो जब हाईलाइट हुआ है तो उस पर इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये कुरान सुन्नत से इख्तिलाफ नहीं बल्कि उससे बगावत का उसको नाम दिया जा सकता है। ये अल्लाह के उमूर तकवीनिया को चैलेंज करने वाली बात है। तो उस पर माहिरीन ने, उलमा ने भी, भारत ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से एक बाकायदा वो तरमीम तैयार कर ली है और एक तरमीम भी इंशाल्लाह एक आदमी मौलाना साहब आपने जब अपोजिशन में थे तो महंगाई के खिलाफ काफी तहरीकें शुरू की आपने। अब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। आलमी मंडियों की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से सारी अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आम आवाम जो है वो परेशान है। बिजली भी महंगी। मैं आपकी मुकम्मल और मैं हुकूमत में होते हुए इस बात को परेशान हूँ और जो जंग हम अंदर लड़ रहे हैं वो मैं आज आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता कि हम क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस हवाले से। और लेकिन क्या मजबूरियां हैं, किस तरह हमें जकड़ा किया है उस नेटवर्क के अंदर जिसमें एक पूरी रियासत को बेबस कर दिया गया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे हमें निकलने के लिए एक कौमी एकजुटती के साथ, ये मैं आपको वादे कर देना चाहता हूँ कि जब महंगाई के खिलाफ हमने लॉन्ग मार्च किया था तो मेरी उस वक्त भी सियासी कारकुन की हैसियत से ये राय थी। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम ने एक मार्च किया था, आज़ादी मार्च। उस आज़ादी मार्च के पीछे एक नजरिया, एक तसव्वुर मौजूद था। महंगाई एक मारूजी, एक ऐसी मुश्किल है जिसके ताने बाने जो है वो रियासत और उसके इदारों से मिलते हैं। नतीजा ये होगा कि आप महंगाई के नाम पर तहरीक तो उठा लेंगे, लेकिन अगर आप ही की हुकूमत आ गई, क्योंकि आवाम तो जाहिर है कि महंगाई से तंग होते हैं, तो आपको सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन फिर जब आपकी हुकूमत आएगी तो यही मुश्किल आपके लिए होगी। तो मैंने उस वक्त भी यही मशवरा दिया था कि आप जो उन्वान लेकर मैदान में आ रहे हैं, ये कहीं आपके अपने गले न पड़ जाए। और वही कुछ अब हो रहा है कि हमारे अपने गले पड़ रहा है। लेकिन ताहम मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में आपसे कहा कि अगर इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो वो भी हुकूमत का इस महंगाई के चैलेंज का मुकाबला करने का एक जज्बा दिखा रहा है कि इसी जज्बे के तहत और इसी सोच के तहत कि किसी तरीके से हम इस सूरत हाल से निकले। IMF को किस तरह चैलेंज किया जाए, IMF के मुकाबले में रियासत कैसी खड़ी हो जाए, उसके अंदर ये तवानाई कैसे आए। अफगानिस्तान भी तो मुल्क चल रहा है, दुनिया कोई तस्लीम ही नहीं करती, लेकिन उसका 88 मेरे ख्याल में अफगानी $1 के बाद इन हालात में कि 20 साल वहाँ जंग भी रही है, उससे पहले भी जंग का बदल होता है। ईरान भी तो वक्त गुजार रहा है,
40 साल से इनकलाब आया हुआ है, अमेरिका मुखालफत और आलमी पाबंदियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ बर्दाश्त करके हमसे बेहतर चल रहे थे। और आज सूरत हाल हमारी ये है कि हर लिहाज से दुनिया के साथ एडजस्टमेंट के बावजूद हम इस मुश्किल में क्यों जा रहे हैं। मकसद ये है कि हमारे कुछ माजी में रियासती सतह की जो हमारी पॉलिसियाँ हैं उसमें इतनी कमजोरियाँ रही हैं कि आज हमें ये दिन देखने पड़े। और ये दिन भी जब सब कुछ हम संभाल रहे थे तो किसी को नहीं पाया कि नवाज शरीफ की हुकूमत में पैक आया, पैसे 106 रुपये के मुस्तहकम हो गया था। नवाज शरीफ की हुकूमत में मेगा प्रोजेक्ट्स आ गए थे, माशी लिहाज से पैसा गर्दिश में आ गया था, लोगों को कारोबार मिल रहे थे। ये सब कुछ होने के बावजूद हमने ऐसे काम क्यों किए कि जिससे मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। तो सबसे पहले आता है सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके बाद आता है माशी अदम इस्तेहकाम। तो सियासी अदम इस्तेहकाम पानामा के जरिए लाया गया और माशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के जरिए लाया गया। और जब ये दोनों मरहले अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर रियासत की नाकामी पर जाकर नतीजा पहुंचता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात आप हजरात से अर्ज करूं कि पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से अपनी एक अहमियत रखता है और दुनिया की इस कदर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जरूर है कि वो उसको दिवालिया खुद नहीं होने देंगे कि उनके मफाद में नहीं होगा। वो हर कीमत पर पाकिस्तान को इस पोजीशन में रखेंगे कि उनकी सरमायाकारी जो है वो जाया ना हो जाए मुकम्मल। तो ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी रियासत की ताकत को समझें, उसकी अहमियत को समझें और एक कौमी यकजहती के साथ हम इस चैलेंज का मुकाबला करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, नवंबर में बड़ी तब्दीली होने जा रही है, इस हवाले से हुकूमत ने आपसे कोई मशावरत की हो, वजीर आजम ने आपसे कोई मशावरत की हो, वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन में मशावरत करने गए, नवाज शरीफ फैसला करेंगे या पीडीएम फैसला करेगी नवंबर वाली तब्दीली का? नवंबर वाली तब्दीली रूटीन की तब्दीली होगी, नवंबर वाली तब्दीली मेरिट पे होगी, नवंबर वाली तब्दीली आइन के मुताबिक होगी, नवंबर वाली तब्दीली वज़ीर आज़म के इख्तियार से। मौलाना साहब, इमरान खान कहते हैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ और वो कहते हैं 3 विकेटें गिराऊंगा, उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, तो उस पे क्या कहते हैं? अब आप मुझे बताएं कि एक खिलंडरा अगर मुल्क की सियासत में आता है तो पूरी सियासत की इस्तिलाहात को तब्दील कर देता है। अब हमने हर बात इस पे करनी है, विकेटें गिराना, पता नहीं आपको तो अल्फाज आते होंगे, मुझे तो अल्फाज जैसे चेरी बनासम कह दिया, किसी जो मैं कह दिया ऐसी। तो इस किस्म की खिलंडरा सियासत पाकिस्तान में आ गई है कि हमारी सियासत की टर्मिनोलॉजीज को उसने तब्दील किया है। फिर इसके पीछे नौजवान नस्ल को लगाना या ये सोचना कि हमारी नई नस्ल, वो तो गुमराही का रास्ता है, वो तो जलालत का रास्ता है। और कहता है मैं रियासत मदीना में कोई एक कानून साजिश दूसरे के मुताबिक दिखा दे देना, एक कानून साजिश, बस मैं आज़ादी दिला रहा हूँ, गुलाम इब्न गुलाम अपने स्टेट बैंक को बेच दिया, IMF को आपने दस्तावेजात दे दिए, अभी आपने अमेरिका के खिलाफ का वहां मेरे खिलाफ साजिश हुई है और अमेरिका के खिलाफ साजिश के बाद अमेरिका ही के अंदर आपने एक फर्म को हायर किया है लॉबिंग के लिए, और फिर जब सफीर साहब आपके घर आते हैं तो आप रेड कारपेट उसके सामने बिछाते हैं। और वो कौन है जिसके साथ उन्होंने वो नोबल के साथ जो मुलाकात की है, खुफिया मुलाकात, अमेरिकन, तो ये सारी रफील के साथ, तो ये सारी चीजें के अंदर अंदर कुछ और बाहर बाहर कुछ, तो बाहर बाहर आजादी, अंदर से गुलामी, बाहर आजादी, मुनाफकत और किस चीज का नाम है कि आपका जाहिर कुछ आप दिखा रहे हैं, आपका अंदर की हकीकतें कुछ और हैं, अंदर से आप गुलाम हैं, जुबान से आप आजादी की बात करते हैं और फिर अल्फाज भी नहीं आते। बात करता है कभी वो कहते इस्लामी टच लगाओ ना, टच खराब हो जाता है उसके। अब ये टच है जो लगा रहा है, अमेरिका से आजादी दूंगा, रसूलुल्लाह से आजादी दूंगा, अल्लाह से आजादी दिलाऊंगा, इस किस्म की जिहारत पर मबनी जुमले कि आपको अल्फाज का इंतखाब भी नहीं आता कि मैं जुमला कैसे अदा करूं और मेरा जुमला दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है। तो इस किस्म की जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू हम रोजाना जो है
और वो सुना रहा है लोगों को और लोग उसको सुन रहे हैं। एक तबका हमारे यहाँ है जो इस किस्म की चीज़ों के पीछे दौड़ता है। तो रद्द अमल में हमें सही रद्द अमल देना चाहिए। महंगाई है, बड़ी है, जो भी उसके असबाब है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हम इस महंगाई पर रद्द अमल देकर पुराने तजर्बा शुदा के पीछे लग जाए कि जिसने मुल्क को ऑलरेडी तबाह किया और ये सारे नतायज में हम उसी के भुगत रहे हैं इस वक्त तक। तो 3.5 सालों में जो खराबियां लाई गई हैं, आप कहते हैं 3.5 महीने में ठीक क्यों नहीं होगी? अभी तो उसके असरात जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में आप चीजें लाए, इन्वेस्टमेंट लाए, जो हमारे मुल्क के अपने वसाइल हैं और जो अपनी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है, उनको हम हरकत में लाए, उनको हम इस्तेमाल में लाएं ताकि मुल्क के अंदर इकानमी को उठा सके। एक बात ध्यान में रखिए, ये जो इस वक्त हुकूमत है ये कलीलुल मुद्दत हुकूमत है। ये वो हुकूमत नहीं कि आप समझे कि मुंतखब है 5 सालों के लिए उसने। तो कलीलुल मुद्दत हुकूमत में हमारा मशवरा अपनी हुकूमत को यही है कि आपने भी कलीलुल मुद्दत मंसूबे बनाने हैं। अगर आपने तवील मुद्दत मंसूबों की तरफ चले गए तो फिर ये जो लोगों की फौरी मुश्किल है इस पर काबू पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अगले इंतखाब में जाना है, अगले निज़ाम में जाना है, जमहूरियत को ताकतवर बनाना है। और ये जो कहते हैं कि हम इलेक्शन, अब इलेक्शन क्या मांगते हो? अगर तुम्हारा इलेक्शन का बड़ा शौक है तो पंजाब की असेंबली तो आपके हाथ में है, तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो आपके हाथ में है, तो वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन कराते? कोई माने तो नहीं है इन लिहाज से? हर दूर तो मच जाएगी ना, तुम हंगामा बर्पा कर रहे हो, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ मरकज में आप इस्तीफे देने की बात करते हैं, अब इस्तीफे भी दे दिए हैं, इस्तीफे देकर इलेक्शन भी लड़ रहा है 9 हल्कों के ऊपर, एक हल्के से पेट भी नहीं भरता। तो एक तरफ असेंबली गलत, एक तरफ असेंबली में जाने के लिए 9 हल्के, ये सब तखरीब के लिए हो सकता है। और फिर जब वो भी नहीं बात बन रही, उससे भी सियासी तौर पर कोई फायदा उसको नहीं मिल रहा, तो फिर वो जिस तरह आप सराय के लोग कहते हैं जी कि वो एक मर्द कोई नाराज हो गया था घर से, तो 1-2 दिन के बाद वो थक गया और वो घर आने को जी चाह रहा था, और शाम को जो वो गाय वगैरह घर वापस आती है तो उसका दुम पकड़ लिया, और दुम पकड़ कर उसके पीछे पीछे आ रहा है, और भेड़ी में घर ना वेंदी, मैं घर ना वेंदी, भेड़ी में घर ना वेंदी, ये वही घर ना वेंदी वाला कल असेंबली में कही है। तो इस किस्म की चीजें जो है ये मौलाना ये तो मौलाना ये बताएं जस्टिस ने एक तो पंजाब और वफाक के दरमियान इस वक्त शदीद महालड़ाई की सूरत हाल पैदा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त आपने अभी बात की है कि 9 हल्कों की ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, तो आप ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, मुल्तान में भी इलेक्शन हो रहा है, तो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं और क्या पैगाम दें? जिस हालात में इस वक्त हम फंस गए हैं, हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत पूरी तरह इंतखाबी हल्कों पर तवज्जो देने की पोजीशन में नहीं है। ये बात एक हकीकत है, क्योंकि इंतखाबी हल्का एक भरपूर तवज्जो चाहता है और हुकूमत की एक उस वक्त तक के लिए बड़ी मजबूत वहाँ पर मरकूज़ नज़र होना चाहिए उसको। लेकिन जो हालात जिससे हम गुजर रहे हैं, जिस तरह कराची में इलेक्शन हुआ, आप उसका टर्नआउट देखें कितना कम है, तो इस तरह आवाम को दिलचस्पी जो है इन चीज़ों में नहीं है। और दूसरी चीज़, मामूली हालात बहुत ज़्यादा उसमें काउंट होते हैं, तो ये हमारे नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा मेयार नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह रज़ीद हमने फैसला यही किया है कि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं और वो 2018 में रनअप थी, तो उसके कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा, और यहाँ मुल्तान में इंशाअल्लाह ऐसे। मौलाना साहब, ये अफवाह है इस्लामाबाद में कि इमरान खान की मुलाकात हुई 2 दफा अफगान सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, क्या इसकी खबर आपको है? ये अफवाहें तो हमने भी सुनी है, अगर आप तक पहुंचे तो हम जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन उसके साथ ये अफवाह भी सुन लो कि बेनतीजा साबित मतलब ये बताएगा हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो है वहाँ पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, कभी बिजली के बिलों में, कभी मुसलसल, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो उन्होंने टोल टैक्स माफ करवा दिया अरकान असम्बली के लिए और सेनेटर्स के लिए, और दूसरी तरफ जो है जो रिटायर्ड आर्मी अफसरान है उनके लिए 6000 सीसी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने पर जो ड्यूटी टैक्स है वो भी माफ कर दिया गया। देखिए, अब मुझे इसके तफसीलात मालूम नहीं है,
मुझे इतना मालूम है कि मेंबरान पार्लियामेंट को मोटरवेज के ऊपर जहाँ पर 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा भी नहीं वहाँ पर इस्तिस्ना दी गई थी, बाद में कुछ अर्से के लिए मुअत्तल कर दी गई। अब दोबारा उसको बहाल किया गया कि वो मोटरवेज के उन मुआहदात में लिखा हुआ है कौन कौन लोग हैं मुस्तिस्ना होंगे, उनमें मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं। तो अब जब बुनियादी मुआहदे के अंदर आपने उसके इस हक को तस्लीम किया है, इस इस्तिस्ना के हक को, तो आज उस हुकूमत ने जो सोचा है कि भाई तो मुआहदे के अंदर हम पाबंद हैं इसके। अब आप मुझे बताएं कि PIA के मुलाजिमीन को बरात है टिकट बुक करना, रेलवे के अंदर बरात है, वापडा के अंदर बरात है, पार्लियामेंट लाजिद में बरात है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बरात है। अवाम का एक नुमाइंदा उसकी रोज रोज कौन सी शादी है इस्लामाबाद में कि वो अपनी शादी के लिए जाता है वहां पर, जाहिर है कि वो अवाम के लिए जाता है, अवाम के लिए उसका सफर होता है और उसके तमाम जो है सूरत जो वहाँ भी दफ्तर में फिर रहा होता है, पब्लिक के साथ फिर रहा होता है, तो आने जाने में। और अगर कोई देना चाहता है तो किस तरह का है उसको, मैं मुस्तस्ना हूँ ना, मुझसे नहीं ले लेते, लेकिन अगर मैं देना चाहूँ तो वो कहेंगे कि भाई आप ना दें, इस तरह भी तो नहीं है, कोई जरूरी बात तो नहीं है। तो एक इशू को सिर्फ इसलिए कि वो सियासी लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं, तब भी ये कोई बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। फिर उस मुआहदे को भी देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया तो आजकल एक बात जहन में रखें, और मैं ये वज़ीर-ए-आज़म को भी अर्ज करना चाहता हूँ बतौर मशवरा की, हुकूमतें सोशल मीडिया पे नहीं चला। अच्छा हजरत, कोई पंजाब में तब्दीली देख रहे हैं आप? पंजाब में 2-3 मेंबरों की मार मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में। मौलाना साहब, ये सुना कि तौहीन अदालत में इमरान खान को रिलीफ दिया गया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? तौहीन अदालत केस में इमरान खान को रिलीफ दिया गया है। नून लीग की जो क़यादत थी, नहाल हो गया, दलाल हो गया, उनको इसी केस में नायल किया गया था। इस हवाले मेरा मशवरा तो यही था और मैंने अपने वकीलों को कहा भी था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, निहाल हाशमी साहब और 2-4 और हजरात, दानियाल वगैरह जिसको सजाएं मिली हैं, जिसको उसको रिलीफ दिया जा रहा हो तो उसको वो कोर्ट के जज के सामने बैठे रहे, ताकि जज उनको देखता रहे और उनकी नजरों में रहे कि मैंने कल उनके साथ ये किया था और आज उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ। जब PTI के अराकीन के वोट की बात आती है तो इमरान खान पार्टी सरबराह है, उसके खत के मुताबिक वो फैसला करेंगे और चूंकि नहीं किया तो फिर नहीं गिने जाएंगे। लेकिन जब शुजात खत भेजता है तो नहीं, वो तो पार्लिमानी अराकीन ने खुद फैसला करना, कुछ पता नहीं चलता। अब हमारी अदालतों के बारे में जब हम बात भी करते हैं तो हमें इसका भी लिहाज होता है कि उनकी बेहतरामी ना हो जाए, उनके तक़द्दुस पे कोई फर्क ना आ जाए। लेकिन इस किस्म की चीजें जब आती हैं तो लोग तबसरा करेंगे, इसके ऊपर तासुरात तो अब लोग देंगे। तो ये चीजें मुश्किल हो रही हैं। एक मेयार रखा जाए और वो आईन और कानून हो, और जो फैसला पहले आपने एक के बारे में दिया है दूसरे के लिए भी वही मेयार होना चाहिए। तो ये जो रोज रोज हम देखते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे कोई होगा ना, कहीं से तो कोई दबाव आएगा ना, कहीं इसराइली चैनल बोल रहा होगा ना, कहीं अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर तशवीश का इजहार किया जा रहा होगा ना। तो एक शख्स के लिए बैनुल-अक़वामी प्रेशर इस तरह पाकिस्तान में आना कभी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी पे हुआ? नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, कभी उस पर तशवीश हुआ? उसको इक़्तिदार से अलग किया गया, कभी उस पर तशवीश का इजहार हुआ? तो ये जो मेयार मुख्तलिफ हो जाते हैं और दोहरे मेयार पर पूरी दुनिया भी चल रही है, हमारी अगर अदालतें चलती हैं, अगर हमारे इदारे चलते हैं, तो मेरे ख्याल में यही चीजें हैं कि जिसने कौमों को तबाह किया है। बहुत शुक्रिया।